में कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी मीडिया से बात कर रहे हैं। आज सवेरे अभी कुछ समय पहले 9:30 बजे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जनरल बॉडी की मीटिंग शुरू हुई। उसमें सबसे पहले श्री विलासराव देशमुख सहित जिन सदस्यों का निधन हुआ है उनके के लिए एक शोक प्रस्ताव पास हुआ और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने बैठक को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने इस दौरान असम में जो हिंसा हुई है उसका जिक्र किया और कहा कि देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घृणा से और हिंसा से उत्पन्न घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मुंबई में जो घटना हुई उन्होंने उसकी भी निंदा की और ये कहा कि देश के किसी भी हिस्से के लोगों को देश के किसी भी हिस्से में रहने का, पढ़ने का, जीविका का और एक सम्मान के साथ सिर उठाकर चलने वाले नागरिक की तरह रहने का अधिकार है। और इस संबंध में जो भी चुनौती सामने आए उसका हमें मुकाबला करना चाहिए। इससे यही नहीं, असम में जिस तरह से लोगों ने अपने पड़ोसियों का साथ दिया, उनकी सुरक्षा, उनके साथ सहयोग, उसकी भी उन्होंने चर्चा की और उनकी तारीफ की। वहां जिस तरह से राहत का काम अनेक संगठन कर रहे हैं उसकी भी प्रशंसा की। मैं इस संबंध में कुछ उन्होंने कहा, कुछ वाक्य आपके सामने रख रहा हूं। The last 2 weeks have been very troublesome for all of us, especially for all who cherish our society's age-old traditions of tolerance, amity, and harmony. The traumatic violence in parts of Assam took many innocent lives and has driven thousands from their homes and destroyed their livelihoods. The guilty has to be brought to justice. At the same time, in the midst of this horrific tragedy, there have been heartwarming instances when neighbors have helped and saved each other, cutting across ethnic and religious identities. उसके बाद उन्होंने और जोड़ा, equally painful and unacceptable was what happened thereafter in Mumbai, where violent demonstrators destroyed public property and attacked the police. In Bengaluru and in other parts of the country, our talented and hard-working young men and women from the northeast were deliberately subjected to both physical and psychological assaults. Like all our citizens, they have every constitutional right to study, work, and live in any part of our country in complete safety and security. The strictest possible action must be taken against those who deliberately seek to divide us, incite and provoke people by their incendiary speeches and aggressive actions. They have misused the social media for their hate-mongering, causing havoc and spreading mass panic. No government can stand by and ignore such treacherous activities. इसके बाद उन्होंने कहा कि जब इस तरह की घटनाएं हो रही हो, देश के कुछ हिस्सों में सूखा हो, कहीं बाढ़ से परेशानी हो और तमाम तरह की दिक्कतें लोगों के सामने है, उस समय विपक्ष, खास तौर से जो मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है,
उसका व्यवहार निहायत गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने लिखा, बोला, इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट, ऑफ इवन शेम, that at a time when serious issues are affecting our people and our country, Parliament is not being allowed to function and fulfill its proper constitutional role and duty. This is the handiwork of just one party, the BJP. This once again shows up the scant respect it has for democratic values. What else can we conclude when its senior-most leader refers to our government as illegitimate, thereby mocking the people of India for the convincing mandate they have given us? बहुत सारी बातें उन्होंने और कहा, और उसमें से how many times will we have to witness this deliberate and cynical disruption that the BJP has made a habit of? I have said it many times before, and I'll say it again. The government and the Prime Minister are always prepared for debate and discussion on any issue, on any CAG report, or for that matter, any perceived shortcoming on their part. But the proper forum for this is an active and involved Parliament, not one that is held to ransom by blackmail, which has become the political bread and butter of the BJP, much to the concern of even some of its allies. This attitude of our way or no way, या तो हमारी बात मानो और या कुछ नहीं होने देंगे, our way or no way is repulsive to the vision of our founding fathers and of the constitutional framework they so painstakingly built for us. उन्होंने सबसे अपील की, कहा कि प्रधानमंत्री ने सारी स्थिति साफ कर दी है। जो बयान उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा, वो विस्तार से उसमें सभी सच्चाई सामने रख दी गई है, और उससे भारतीय जनता पार्टी के आरोपों की असलियत की कलई खुल जाती है। उसके बाद उन्होंने सब लोगों से अपने जो नीतियां हैं, जिस तरह के कार्यक्रम किए हैं यूपीए सरकारों ने, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनका जिक्र किया, और उन्होंने ये अपील की, मेनी इकोनॉमिक पॉलिसीज रिक्वायर ए लार्जर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग and agreement both within the UPA and with other political parties as well. We are striving sincerely for this consensus both within and outside the UPA. In a democracy, dialogue, debate and discussion is the only way forward, but the opposition too, especially the principal opposition party, has to come forth and show a sense of responsibility. बाद में उन्होंने कांग्रेस के सभी संसद सदस्यों से अपील की कि वे चुनाव आ रहे हैं, आगे चुनाव है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके लिए हमें तैयार होना चाहिए और लोगों को यहाँ की सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। Friends, we are now entering a period in which elections will consume much of our time. We have many achievements. We have nothing to feel defensive about. We are ready to face the challenges before us. We will not be deflected by the intemperate Congress bashing by the opposition. Let us stand up and fight with a sense of purpose and fight aggressively. सारे लोगों को उन्होंने आह्वान किया, कांग्रेसियों का, संसद सदस्यों का, कि वो हर चुनौती का सामना करें, किसी भी तरह से आत्मरक्षात्मक रवैया अपनाने की जरूरत नहीं है। हमने इतने काम किए हैं, सही काम किए हैं, जनता के हित में काम किए हैं, अपने वादों को पूरा किया है, और इसलिए हमको सिर उठाकर अपनी बात कहने का अधिकार है। जनता को ये सब समझाना चाहिए। सर ब्लैकमेल, वो हिंदी में ब्लैकमेल, रैंडम और ब्रेड एंड बटर जो बोला उसको हिंदी में ब्लैकमेल कर रही है और दो हाथ से तैयार। तो क्या कहेंगे बीजेपी पर सोनिया जी? 2 मिनट बीजेपी रुक जाओ ना, कोई इसको अलग से कर लो। सर जो ब्रेड एंड बटर बोला है, क्या आपको लगता है बीजेपी की रोजी रोटी बन गई है ब्लैकमेल करना? ये कहना चाहती थी सोनिया गांधी? नहीं, कहना कि आपका प्रश्न है कि जो रवैया उन्होंने अपनाया है ये ब्लैकमेल का और इस तरह का, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोजी रोटी है? मैं समझता हूं इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी मैं कहूंगा सभ्य समाज में
संवाद के बगैर काम चल सकता है क्या? ये लोकतंत्र की पहली शर्त है। संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बहस होना चाहिए। संसद किस लिए बनी है? उस बहस से भागना क्या किसी तरह से का भय नहीं है कि शायद हम अगर चर्चा होगी तो हमारी जो सारी बातें हैं, जो किला हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ढह जाएगा, उसमें कुछ नहीं रखा है, कोई दम नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ये कहा है। सर, बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि वो संवाद के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में क्या रणनीति होगी कांग्रेस की आगे? क्या ये रणनीति का प्रश्न नहीं है, इसका फैसला तो जिन्होंने इस संसद में चुनकर लोगों को भेजा है उनको अपनी राय बनानी है। वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। सरकार अपना काम करती रहेगी और संसद में हम संवाद की बात करते रहेंगे।